ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर सुरेश कुमार आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्लासेस अभी आपका हम ले रहे हैं, जो कि बीकॉम सेम थर्ड ऑनर्स के लिए और बीकॉम सेम 5 जनरल के लिए है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सारा रूल्स आपको हम लगभग बता चुके हैं और डिफरेंट क्वेश्चन अभी हम आपको करा रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपको समझने के लिए भी। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन लिखाएंगे। जब क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा फिर आप कॉपी में क्वेश्चन को लिखिएगा, तब जाके जैसे जैसे समझाएंगे फिर आप अपना कॉपी में बनाइएगा तो 100% आपको क्लियर समझ में आते जाएगा। तो ये क्वेश्चन अभी आप स्टार्ट कीजिए लिखना। लिखिए, मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ ए बिग हाउस whose municipal valuation is rupees 36,000 per annum. Mr. X is the owner of a big house whose municipal valuation is rupees 36,000 per annum. Full stop. 1/3 portion of the house is let out to a tenant at rupees 1,600 per month for residential purpose. 1/3 portion of the house is let out to a tenant at rupees 1,600 per month for residential purpose, and remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. इसमें ओवरऑल मिलेंगे। मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ ए बिग हाउस whose municipal valuation is rupees 36,000 per annum. Full stop. 1/3 portion of the house is let out to a tenant at rupees 1,600 per month for residential purpose, and remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. Full stop. The construction of this started in June 2014 and was completed on 1st November 2016. The construction of this started in June 2014 and was completed on 1st November 2016. Full stop. He paid the following expenses. अब expenses क्या क्या पेड किया वो नीचे लाइन से आप लिखते जाइएगा। सबसे फर्स्ट में लिखिए म्युनिसिपल टैक्स रुपीज 3,600, इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज 600, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट रुपीज 600। म्युनिसिपल टैक्स रुपीज 3,600, इंश्योरेंस प्रीमियम 600, प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट रुपीज 600। फिर नीचे लाइन से लिखिए मिस्टर एक्स हैड टेकन ए लोन ऑफ रुपीज 50,000 ऑन 1st July 2014. Mr. X had taken a loan rupees 50,000 on 1st July 2014 for the construction of this house. Full stop. The loan has not yet been paid back, and interest at the rate of 12% per annum is payable on it. Full stop. During the previous year he received rupees 5,000 from an old tenant as an arrear of rent. Full stop. This amount was allowed as deduction in the past year
past year as unrealized rent. Full stop. Compute his income from house property for the assessment year 2019-20. एक बार और हम जल्दी से पढ़ते रहे, पूरा मिला लीजिए क्वेश्चन. Mr. X is the owner of big house whose municipal valuation is rupees 36,000 per annum. Full stop. 1/3 portion of the house is let out to a tenant at rupees 1,600 per month for residential purpose, and remaining 2/3 portion is occupied by him for his own residence. Full stop. The construction of this started in June 2014 and was completed on 1st November 2016. Full stop. He paid the following expenses: municipal tax 3,600, insurance premium rupees 600, property tax to state government rupees 600, म्यूनिसिपल टैक्स 3,600, फिर नीचे में इंश्योरेंस प्रीमियम 600 और प्रॉपर्टी टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट रुपीज 600. फिर नीचे लाइन से लिखिए मिस्टर एक्स हैड टेकन ए लोन रुपीज 50,000 ऑन 1st July 2014 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस. फुल स्टॉप. द लोन हैज नॉट एट बीन पेड. The loan has not yet been paid back, and interest at the rate of 12% per annum rupees 5,000 from an old tenant as an area of rent. The loan has not yet been paid back, and interest at the rate of 12% per annum is payable on it. एक बार और देख लीजिए. The loan has not yet been paid back, and interest at the rate of 12% per annum is payable on it. Full stop. During the previous year, he received rupees 5,000 from old tenant as an area of rent. Full stop. This amount was allowed as deduction in past year as unrealized rent. Full stop. Compute his income from house property for the assessment year 2019-20. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आपको ठीक से समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि एक ही घर है और एक पूरा घर में उसका 1/3 पोर्शन जो है लेट आउट है और 2/3 पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है. एक घर है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा घर है, उसका 1/3 पोर्शन जो है आप रेंट में लिए हैं और 2/3 पोर्शन में आप अपने रहते हैं. तो 2/3 पोर्शन के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 2/3 पोर्शन जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका नेट एनुअल वैल्यू सीधे नील होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन खाली डिडक्शन देते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में. आपको ये बार-बार हम बताते हुए आ रहे हैं. लेकिन जो 1/3 पोर्शन लेट आउट है, तो 1/3 पोर्शन लेट आउट के लिए पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर म्युनिसिपल टैक्स 1/3 ही माइनस करेंगे, जितना उसका पोर्शन है उसी हिसाब से. अगर म्युनिसिपल टैक्स जितना दिया है तो 1/3 पोर्शन में रेंट है तो आपको 1/3 पोर्शन ही म्युनिसिपल टैक्स का माइनस करना पड़ेगा. और फिर ये नेट एनुअल वैल्यू होगा, फिर 30% लेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आएगा, फिर वो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हम पूरा घर के लिए निकालेंगे और फिर उसका 1/3 ही आपको माइनस करना पड़ेगा और 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड में माइनस होगा. सेल्फ ऑक्युपाइड में नेट एनुअल वैल्यू नील होता है, आपको बहुत बार समझा चुके हैं ये बात को, और सेल्फ ऑक्युपाइड में ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है. क्लियर है? तो अब आप देखिए बोर्ड में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए यहां 1/3 लेट आउट पोर्शन, पहले तो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 जैसा लिखते हैं आप लिखिएगा. ये रुपीस का कॉलम हो गया पूरा, और यहां पर देखिए लेट आउट पोर्शन में आपका 1/3 पोर्शन जो है लेट आउट है 1600 पर मंथ. तो 1600 इंटू 12 कर देंगे तो 19,200 आएगा. और म्युनिसिपल वैल्यू देखिए दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन रुपीज 36,000. तो 36,000 का 1/3 लेंगे. 36,000 का हम देखिए एक बार निकाल भी दे रहे हैं. 36,000 का 1/3 12,000 आएगा, तो 12,000 म्युनिसिपल वैल्यू 12,000, क्योंकि 36,000 पूरा हाउस के लिए म्युनिसिपल वैल्यू है. 1/3 पोर्शन लेट आउट है उस हाउस में, तो 1/3 पोर्शन के लिए म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 12,000, और एक्चुअल रेंट
1600 जो है 1/3 पोर्शन के लिए दिया हुआ है, जो कि 1600 पर मंथ है और ये 12 मंथ के लिए है। देखिए 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज लेट आउट टू अ टेनेंट रुपीज 1600 पर मंथ। ये 1600 पर मंथ 1/3 पोर्शन के लिए ही है, ये पूरा हाउस के लिए नहीं है, इसलिए इसका 1/3 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/3 पोर्शन का ही दिया हुआ है। तो 1600 इंटू 12 कितना हो गया 19,200। रूल में हम आपको क्या बताए थे, विचएवर इज ग्रेटर, यहाँ लिख भी दिए आपको क्लियर करने के लिए, विचएवर इज ग्रेटर। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, दोनों में जो बिग होता है उसको हम क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। ये पहले भी बहुत बार आपको समझा चुके हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम आपको 19,200 निकाले। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लास्ट का वीडियो में आपको बहुत बार समझा चुके हैं, और फिर आपको हम क्लियर कर दिए कैसे इसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकला। 19,200 ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया। म्युनिसिपल टैक्स देखिए दिया है आपका नीचे में, देखिए द म्युनिसिपल टैक्स 3,600 नीचे बीच में दिया हुआ है। तो 3,600 का 1/3 निकाले, तो 3,006 का 1/3 कितना हो गया 1,200 हो गया। तो 19,200 में 1,200 माइनस करेंगे तो 18,000 नेट एनुअल वैल्यू हुआ। ये नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू 18,000 हो गया। अब इसमें दो डिडक्शन हम लोग देते हैं, एक नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ लिख दिए 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। तो 18,000 का 30/100 करेंगे तो 5,400 आएगा, और फिर लेस इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन लोन अभी आपको समझाएंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों को ऐड करके 8,100 आएगा, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 1/3 पोर्शन के लिए इनकम आया। अब इसमें देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे हम निकाले हैं, इसका मेन इंटरेस्ट ऑन लोन ही है। इसको पूरा क्वेश्चन का थीम इंटरेस्ट ऑन लोन है। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो फिर कहीं आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकाले हैं आप यहां पर देखिए। देखिए लोन आप अपना बुक में क्वेश्चन में देखिए, लोन लिया है 1 जुलाई। क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए लोन लिया है, लोन दिया है 1 जुलाई। Mr. X had taken a loan 50,000 on 1 July 2014 for the construction of this house. क्लियर है, टोटल हाउस के लिए। तो 1 जुलाई का लोन लिए हैं, यहां पर हम लिख भी दिए हैं 1 जुलाई 2014। और हाउस कंप्लीटेड कब हुआ है ऊपर में दिया हुआ है। देखिए हाउस कंप्लीटेड जो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टार्टेड, ऊपर में देखिए started in June 2014 and was completed on 1st November 2016। तो हाउस कंप्लीटेड है 1st नवंबर 2016। तो हम आपको लास्ट क्लास में बोले थे कि जब लोन लिया और जब से घर बना, इस बीच में जितना भी प्रीवियस ईयर आएगा, तो जितना प्रीवियस ईयर आएगा उस टोटल प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा उसका 1/5 इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगा। 1/5 इंस्टॉलमेंट में आपका डिडक्शन मिलते जाएगा, 5 साल तक मिलता है 1/5 इंस्टॉलमेंट में। तो यहां पर देखिए 1 जुलाई 2014 से अब घर कब कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर 16। तो इसमें दो प्रीवियस ईयर हमारा आएगा, एक होगा 14-15 मतलब अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 14-15 आया। तो 14-15 हमारा अप्रैल से शुरू होता है, लेकिन वो जुलाई में लोन लिया, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, यानी कि पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर एंड पूरा जनवरी, अगेन फरवरी, अगेन मार्च, तो 9 मंथ होगा। 1 जुलाई 2014 से 16 है, तो 14, 15, 15, 16, तो 16 में 31 मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, और ये नवंबर में कंप्लीट हुआ है। तो उस तक जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद से हमको मंथ में नहीं लेना है, हमको जब कंप्लीट होगा, जो प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा उसमें हमको लेना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा। तो 14-15 में 9 मंथ आया, और 15-16 में कितना मंथ लेंगे हम 12 मंथ। 15-16 का मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। आपको पता है कि जितना भी हमारा 2 तरह का ईयर है, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर जितना भी गवर्नमेंट का डेट, जितना भी गवर्नमेंट का वर्क होता है जो पूरा होता है, वो हमारा होता है अप्रैल टू मार्च। ये आपको पहले से पता होगा।
तो हमारा जितना भी गवर्नमेंट का वर्क होता है वो अप्रैल टू मार्च यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो ये अर्न किया है, जो अर्न करते हैं, यानी कि हिसाब किताब का जो वर्ष होता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसके बाद वाला 31 मार्च में खत्म होता है। ये आपको पहले भी बताए हुए हैं सैलरी चैप्टर में। तो देखिए, तो यहाँ पर 14-15 और 15-16, तो 15-16 में यहाँ पर नवंबर खत्म हो रहा, जबकि हमारा ईयर एंडिंग है इसका 31 मार्च का, फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च में खत्म होता है। तो मार्च के बाद अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं लेना है, तो यहाँ पर 14-15 15-16 31 मार्च तक लेंगे। तो 14-15 में 9 मंथ आया, 1 जुलाई 2014 से 1 नवंबर 16, इसमें 2 प्रीवियस ईयर आ रहा, 14-15 15-16, तो 16 हमारा 31 मार्च में कंप्लीट होगा। तो खाली हमको जो ईयर कंप्लीट होगा वहीं तक लेना है, उसके बाद हमको मंथ में नहीं लेना है। शुरू में मंथ में लेंगे, ईयर कंप्लीट होने के बाद मंथ में नहीं लेना है, एक बात को याद रखिएगा। तो 14-15 में 9 मंथ आया, 9 मंथ कैसे आया, 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2015 9 मंथ आएगा, और 15-16 12 मंथ आएगा, क्योंकि 15-16 पूरा कंप्लीट हो रहा। तो 9 और 12 कितना हो गया, 21 मंथ्स हुआ। अब लोन कितना है देखिए, यहाँ इंटरेस्ट लिख दिए हैं, ये इंटरेस्ट हो गया, INT इंटरेस्ट लिखे हैं शॉर्ट में, है ना। तो 15,000 का 12% और कितना मंथ आया, 21 मंथ, तो 21/12 इसको ईयर बना दिए, तो आएगा 10,500। ये कितना आया, 10,500 आया, और 10,500 का 1/5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन लेते हैं तो 2,100 आएगा। 10,500 का 1/5, अब इसको काटिए तो 2,100 आएगा। और प्रीवियस ईयर में हमको 12% ऑलवेज लेना है, 12% इंटरेस्ट है, तो 50,000 का 12% 6,000 आएगा। तो 6,000 और 2,100 कितना हो गया, 8,100 हो गया। तो यहां जो 8,100 हुआ उसका 1/3 हम लेंगे, 2,700। 8,100 का 1/3 निकालेंगे तो 2,700 आएगा, और 8,100 का 2/3 निकालेंगे। 1/3 क्यों निकाले, 1/3 हमारा जो लेट आउट पोर्शन है, और 2/3 हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन है, तो सेल्फ ऑक्युपाइड में भी डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, 10,000, पहले तो हम 10,500 का 1/5 इंस्टॉलमेंट में 2,100 ले लिए, 2,100 इंटरेस्ट आया, और फिर प्रीवियस ईयर का 50,000 का 12% 6,000 आया। एक बात याद रखिएगा, 50,000 का 12% 21 मंथ, 10,500 का 1/5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा 2,100, अब प्रीवियस ईयर का 50,000 का 12% 6,000, तो 6,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 8,100 डिडक्शन। अब 8,100 में 1/3 सेल्फ ऑक्युपाइड, सॉरी 1/3 लेट आउट पोर्शन है, तो 8,100 का 1/3 लेट आउट निकाले 2,700, और 8,000 का 2/3 निकाले 5,400 आया, ये सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन का। 1/3 8,100 का 1/3 2,700 हुआ लेट आउट पोर्शन, और 8,100 का ये 2/3 है, ये 2/3 है, ये 5,400 हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर देखिए 30% ऑफ एनुअल वैल्यू लिए, और इंटरेस्ट ऑन लोन ये 1/3 है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहां पर लिख भी देते हैं 1/3, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, ये 1/3 पोर्शन के लिए हुआ। तो 1/3 पोर्शन के लिए कितना है, 2,700, ये टोटल को ऐड कर दिए, ये इनकम हो गया हमारा 9,900। अब देखिए ये आपका लेट आउट पोर्शन 1/3 के लिए निकाल दिए, 9,900 हमारा इनकम आया। अब देखिए 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन, तो 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन के लिए एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है। यहाँ 2/3 सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन, ये देखिए यहाँ एनुअल वैल्यू लिख दिए हैं, एनुअल वैल्यू, ए वैल्यू का मतलब एनुअल वैल्यू नील हो गया, और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ये घर जो है 31 मार्च 99 के बाद बना है, तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2/3 पोर्शन के लिए हमारा कितना है 5,400। 2/3 पोर्शन के लिए यहां पर लिख भी देते हैं 2/3, ताकि आपको याद रहे। तो 2/3 पोर्शन के लिए 99 के बाद घर बना है, तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख होगा, लेकिन यहां पर 2/3 पोर्शन के लिए 5,400 ही है,
तो 5400 माइनस करेंगे तो ये हमारा लॉस हो गया माइनस 5400। तो ये 1/3 पोर्शन लेट आउट के लिए प्रॉफिट हुआ और 2/3 पोर्शन के लिए लॉस हुआ 5400 का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए, अब इसमें आप थोड़ा नीचे में देखिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव 5000 फ्रॉम एन ओल्ड टेनेंट एज एन एरियर ऑफ रेंट बचा हुआ था। दिस अमाउंटेड वाज अलाउड एज डिडक्शन के लिए इसको दिया हुआ है फॉर अनरियलाइज्ड रेंट, कंप्यूट हिज इनकम। तो अनरियलाइज्ड रेंट ये पहले का बचा हुआ था 5000, जो 30% हम लोग डिडक्शन लेते हैं, 30% ऑफ 5000, 1500 माइनस किए 3500 आया है, इसमें अनरियलाइज्ड रेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 तरीका से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ। पहला तरीका जो हमारा था 1/3 लेट आउट पोर्शन के लिए 9900 निकाले थे, सेल्फ ऑक्युपाइड 2/3 पोर्शन के लिए 5400 का लॉस हुआ और अनरियलाइज्ड रेंट के लिए 3500 का इनकम हुआ। तो इसको और इसको दोनों को ऐड करके 5400 माइनस करेंगे तो 8000 हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8000 आया। तो ये आपका इसमें ये 8000 ही टैक्सेबल इनकम हो गया हमारा हाउस प्रॉपर्टी का। तो यहां पर आपको 1/3 और 2/3 जो पोर्शन है, ये आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको ठीक से समझना पड़ेगा, जो कि आपको हम पूरा एक एक चीज कैलकुलेशन करके आपको इसमें हम दे दिए हैं समझा के। ये सब इतना कैलकुलेशन आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। तो आप पहले क्वेश्चन को लिख के सबसे पहले इसमें आप क्वेश्चन को लिखिएगा और क्वेश्चन लिखने के बाद जो है जैसे जैसे हम आपको समझाए हैं उसी हिसाब से आप इसको फिर से जैसे जैसे हम कैलकुलेशन आपको समझाए हैं तो कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखिएगा और जिस तरीका से पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, जिस तरीका से हम समझाए हैं बोर्ड में देखिएगा। कैलकुलेशन को पूरा डिटेल आपको हम समझा दिए हैं और 1/3 और 2/3 पोर्शन के लिए भी अलग अलग आपको निकाल दिए हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम अलग से आपको बताए हैं। अब मेन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में देखना है और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर मैसेज कीजिए और ध्यान से इसको समझिए, क्लास में रेगुलर रहिए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।